Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the topic of sets. In everyday life, we often encounter a collection of objects such as a pile of books, a bunch of keys, a team of players, etc. All these are examples of sets, but in mathematics, it needs to be defined. So its definition would be set is a collection of well-defined and distinct objects. For example, set of first 5 English letters. So set named A equal to A, B, C, D and E. So this is a set which comprises of first 5 English alphabets, right? We take another example of sets. For example, a set of 3 students in your class. So we name Ali, Sabir, Iman, right? This way it is another example of set. बाकी इस चैप्टर से कंसर्न, इस टॉपिक से कंसर्न और जो डिटेल्स होंगी हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में उसको डिस्कस करेंगे. नाउ एक्सरसाइज 14A, पेज नंबर 397. This is Mathematics Book 2, 7th edition. Now statement of the first question. B is the set of odd positive integers less than 11. Part A. List all the elements of B in set notation. Part B. State whether each of the following statements is true or false. Now we solve part A. Now the solution of part A of question number 1. We list all the required elements of the set. This is the set B, and the elements would be 1. As these are odd positive integers, so 1, then 3, 5, 7 and 9. 11 will not be the member of this set. Why? Because हमसे कहा यह गया था कि less than 11, ठीक है. So 9 तक ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स शामिल हो जाएंगे. क्लियर? Now part B. State whether each of the following statements is true or false. This is 1 is member of set B. Is it true? Yes, 1 was the member of the set. So this is true. It would be true. First is true. Then second, 4 is not member of set B. तो 4 सेट B का मेंबर नहीं है. Why? Because 4 is even और इस सेट के अंदर हैं ऑड नंबर्स लेस देन 11. सो ये भी ट्रू होगा. सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू. देन थर्ड पार्ट, 0 belongs to B means 0 is member of set B. Is 0 the member of set B? No. B is the set of odd positive odd integers less than 11, so 0 उसमें नहीं आएगा. So this is wrong. This is false. Then 11 is not member of B. This is also true. क्योंकि हमारे पास जो odd integers थे, these are up to 9, तो उसमें 11 तो नहीं था. देखिए यहाँ पर इसमें हमारे पास
9 तक मेंबर्स थे, सो 11 उसमें शामिल नहीं है. सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. 11 is not member of set B, right? Now the statement of second question. State the number of elements in each of the following sets. Part A. Months in the year. एक year में कितने months होते हैं? Yes, 12. So the number of members in set A equal to 12. Now part B. Odd numbers between 10 and 26. Now part B. Number of elements equal to how many? These would be 8 members. ये शायद क्लियर नहीं हुआ. फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी इजी कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन पार्ट बी में देखिए, इसको थोड़ा सा रफ वर्क में करके हम देखते हैं. इन रफ वर्क वी राइट डाउन द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26. तो बिटवीन का मतलब होगा कि ये 10 शामिल नहीं होगा, 26 शामिल नहीं होगा, और बाकी ऑड नंबर्स देखिए. 11, yes, then 13, then 15, then 17, 19, 21, 23 and 25, right? These are the odd integers between 10 and 26. 10 और 26 के दरमियान ये ऑड इंटीजर्स हैं. दीज आर 8 इन नंबर. सो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8, राइट? दिस वर्किंग वी हैव डन इन रफ वर्क. नाउ पार्ट सी. इन पार्ट सी, pupils in your class who are taller than you. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिलाल इसे सॉल्व कर रहा है तो वो लिख सकता है कि 20 हो सकता है. 20 स्टूडेंट्स उसकी क्लास के ऐसे हों जो उससे टॉलर हों. सारे बच्चे ही तकरीबन उससे टॉलर हैं. और अगर यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है फॉर एग्जांपल फातेह, तो वो लिखेगा नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू 0 बिकॉज ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. इज इट सो? तो लिखा उसी तरह से जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, फिर जितने बच्चों की तादाद ऐसी है जो कद में आपसे ज़्यादा हैं वो आप लिख देंगे, राइट? नाउ पार्ट डी. नाउ पार्ट डी, कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग. तो आपने स्कूल के फ्लैग को गौर से देखिए. जितने कलर्स हैं आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, वो तादाद आप लिख देंगे, राइट? नाउ पार्ट ई. पार्ट ई इज नंबर ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो. सो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? इक्वल टू 7. 7 colors are there in rainbow. Now part F. Horoscope signs. Horoscope signs कितने होते हैं? I think these are 12 in number. So हम लिख देंगे number of members equal to 12. This way question number 2 is finished. Now the next question. Question number 3. List all the elements in each of the following sets in set notation. Part A. X when x is a positive integer between 1 and 10. Now we write it down. Now the solution of question number 3.
in set notation it would be set A equal to positive integers between 1 and 10, between 1 and 10, positive integers between 1 and 10. So मैंने पहले भी आपको बताया कि between का जब लफ्ज़ होगा तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, राइट? सो 2 से स्टार्ट हुआ, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bracket closed. This is the set notation of part A. Now part B. Part B is x when x is a negative integer between -10 and -1 inclusive. Inclusive का मतलब होता है शामिल करते हुए. So ये सेट होगा B equal to -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 and -1 bracket closed. Within curly brackets all the elements are written here. This way set B is written in the set notation. Now part C. Part C is x when x is a positive even integer such that x is more than -2 and less than 12, less than or equal to 12. So -2 को छोड़कर हमने और फिर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लिखने हैं. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स तो स्टार्ट ही 2 से होते हैं. सो 2, 4 और ये सारे करके हम 12 तक लाएंगे, बिकॉज यहाँ पर है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 12. तो 12 से छोटे भी शामिल हो जाएंगे और 12 भी शामिल हो जाएगा. सो दिस वे in this part C, the set C would be equal to, now we have to write down positive even integers more than -2. So हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि कम से कम पॉजिटिव इंटीजर जो कि इवन भी है that is 2, then 4, then 6, yes, then 8, then 10 और उसके बाद 12 भी शामिल होगा, क्योंकि लेस देन 12 तो सारे आ गए एंड इक्वल टू भी, तो 12 इटसेल्फ भी शामिल हो जाएगा. सो दिस वे C इज इक्वल टू द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. दिस इज द सेट नोटेशन ऑफ दिस पार्ट C. Now part D. In part D, D is the set of vowels in the word happy. तो happy के अंदर क्या ख्याल है कितने vowels आ रहे हैं? Just one vowel is there, that is A. So this is uni member. This is a singleton set. In other words, ऐसा सेट जिसमें एक मेंबर है A. Now question number 4. Question number 4 is just like question number 3. In question number 4, list the elements of the following sets. Part A, vowels in the word mathematics. Now we write it down. Part A of question number 4. We have to write down
the members of the vowels in the word mathematics. This would be the set having members A, E, I. So this is the set having 3 members, right? Now part B, the even colors of the rainbow. यहाँ पे देखिए जो कलर्स ऑफ रेनबो लिखा है उसके गिर्द ब्रैकेट लगी है, मीन्स ये सेट के मेंबर्स हैं. सो हम 7 कलर्स जो हैं उनके नेम लिख देते हैं, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा इस सेट का. दीज आर रेड, देन ऑरेंज, yellow, then green, then blue, then indigo, then is violet. So these are the 7 colors of rainbow. This way it is a set which has 7 members. Now part C, multiples of 9 which are less than 50. And this is written within the brackets, so means these are the members of this set. This is written in descriptive form, we have to write it down in set notation. तो हमें वो members लिखने हैं ब्रैकेट्स के अंदर. अब देखिए इस सेट में members होंगे multiples of 9 which are less than 50. So first 9 itself, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45. Now the next member exceeds 50, so वो नहीं आएगा क्योंकि वो 54 है, 54 50 से बड़ा हो जाता है. So बस यही members होंगे. So this set has 5 members, right? Now part D and E you will solve by yourself. Afterwards, question number 5. Now the statement of the question is, state whether each of the following collections is a well-defined set. Give a reason for each answer. Part A, pupils in my class who has 2 brothers. अच्छा, इसकी स्टेटमेंट में अ कट कर दें. यहाँ पे होगा pupils in my class who have 2 brothers. अब आपकी क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं जिनके 2 भाई हों, 4 हो सकते हैं ऐसे, 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे, तो जो भी तादाद उनकी होगी. सो दिस इज़ वेल डिफाइंड. ठीक है ना. तो अगर एक ऑब्जर्वर उन्हें देखे तो भी जिन बच्चों के नाम जिनके 2 भाई हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स सेम ही निकलेंगे ना. ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक शख्स बनाए उनकी लिस्ट तो उसमें एक बच्चा शामिल है, दूसरा शख्स लिस्ट बनाए तो उसमें वो बच्चा शामिल ना हो. ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता. अब ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी पार्ट बी से. सो पार्ट ए इज़ वेल डिफाइंड. पार्ट बी, इसमें देखिए मेंबर क्या है. अ प्यूपिल इन माई क्लास हु इज़ शाय. दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. वाई? बिकॉज शाइनेस जो है उसको हम पैमाइश नहीं कर सकते उसकी.
सो हो सकता है कि एक टीचर के नज़दीक जो लिस्ट बन रही हो उसमें कोई एक स्टूडेंट का नाम शामिल है शाये में, दूसरा टीचर जब वो लिस्ट बनाए बच्चों की तो उसमें वो 4 बच्चों के नाम लिखता है जिसमें इस बच्चे का नाम ना हो, ठीक है। कोई और टीचर बनाता है लिस्ट तो उसमें वो 6 ऐसे बच्चों के नाम शामिल कर दे हु आर शाय, और हो सकता है मैं लिस्ट बनाऊं तो उसके अंदर कोई एक बच्चा भी मैं समझूं कि वो शाय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टेटमेंट्स जिनमें इस तरह की स्टेटमेंट हो कि जो पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पर बेस करती हो, यानी उसमें मेजरेबल कुछ ना हो। अब देखिए ना, शाइनेस को हम मेजर तो नहीं कर सकते ना। सो दिस वे दिस पार्ट बी जो सेट डिफाइन किया जा रहा है, दिस इज अनडिफाइंड, राइट, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। यहां आप लिख देंगे नॉट वेल डिफाइंड। नाउ पार्ट सी, a TV actor who is well liked by my classmates। अब टीवी एक्टर हो सकता है कोई एक स्टूडेंट जो बनाए सेट नेम्स के, एक्टर्स के नेम के, उसके अंदर वो एक एक्टर को शामिल करे, और हो सकता है दूसरा स्टूडेंट जब बनाए तो वो कहे कि ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, ये तो अच्छा अदाकार है ही नहीं, वो किसी और का नाम शामिल कर दे। तो देखिए इस पार्ट सी में भी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ना वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। इसमें कोई बात मेजरेबल नहीं है, यानी हम पक्का नहीं कह सकते कि मसलन 2 या 3 बंदे अलग अलग सेट तरतीब दें तो उसके अंदर उन तमाम के मेंबर्स एक जैसे रखें, वो ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है किसी एक को एक एक्टर पसंद हो, दूसरा कहे कि जी ये तो एक्टर ठीक है ही नहीं, वो किसी और का नाम शामिल कर दे, राइट। सो दिस वे पार्ट सी इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। पार्ट डी, अ डिश वेल लाइक्ड बाय माय फैमिली मेंबर्स। जी, तो देखिए इसमें पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है या नहीं होती। अब देखें, हो सकता है कि किसी एक के नज़दीक एक डिश बहुत लजीज हो और दूसरे के नज़दीक बिल्कुल ही फजूल हो, सो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गई ना इसमें। सो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, राइट, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। हो सकता है मैं सेट बनाऊं तो उसके अंदर मैं डिश रखूं कि जी पुलाव, चिकन पुलाव, और कोई और अगर सेट बनाता है तो उसमें वो मेंबर रखे उसका फॉर एग्जांपल कस्टर्ड। कोई तीसरा स्टूडेंट बनाता है तो उसमें वो मेंबर रखे फॉर एग्जांपल लेज़ानिया। तो देखें पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इन्वॉल्व हो गई ना, तो कोई बात इसमें मेजरेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। नाउ पार्ट ई, अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय क्लास, इज इट वेल डिफाइंड और नॉट। ये वेल डिफाइंड है, दिस इज वेल डिफाइंड। अब मसलन हम मैथमेटिक्स की ही मिसाल लें तो देखिए तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक एक जैसी होगी। अब जैसे पहले वो बुक 1 से पढ़ रहे थे, अब आज अगर हमने काम शुरू किया तो तमाम बच्चों के पास बुक 2 होगी, तो तब वो काम कर सकेंगे ना। सो दिस इज वेल डिफाइंड। पार्ट एफ, द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन हॉलीवुड। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल उस तरह से स्टेटमेंट है जैसे ये था टीवी एक्टर वाला, ठीक है ना, ये भी उसी तरह से है, क्योंकि यहाँ पर भी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो इन्वॉल्व हो गई। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। देखिए इस क्वेश्चन 5 के अंदर वो पार्ट्स जिसमें सेट्स वेल डिफाइंड हैं उनमें तो रीज़न की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ पर मिसाल के तौर पर पार्ट बी में है
a pupil in my class who is shy. This is not well defined. तो यहाँ पे आप reason साथ लिखेंगे. B part is a pupil in my class who is shy. This is not well defined. Not well defined. Right? Why this is not well defined? यहाँ पे आप reason लिखेंगे. Personal liking, disliking, personal liking, disliking is involved. Right? Personal liking or disliking is involved here. So this is not well defined. अब देखिए, in this question part B, part C, part D and part F are not well defined. तो इन पार्ट्स में आप पहले स्टेटमेंट लिखिएंगे, उसके बाद नॉट वेल डिफाइंड, देन द रीज़न बिहाइंड इट. राइट? ये मैंने आपको एक क्लू दे दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट. पार्ट ए, पोलर बियर्स लिविंग इन द सहारा डेजर्ट. अब देखिए, पोलर बियर इंतहाई सख्त ठंड में रहता है, और कहाँ? सहारा डेजर्ट का जिक्र किया गया, रेगिस्तान का. तो इज़ इट पॉसिबल कि कोई पोलर बियर सहारा डेजर्ट में रह सके? मुमकिन नहीं है ना. सो दिस इज एम्प्टी सेट. आप यहाँ लिख देंगे एम्प्टी सेट पीछे इसके. देन पार्ट बी, bald men with a crew cut. अब जिस गरीब के बाल ही नहीं होंगे वो क्या कट रखेगा? ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. देन buses with 50 seats. Yes, this is not empty. This is not empty set. क्योंकि 50 सीट्स हो सकती हैं किसी बस में, अगर नहीं भी हैं तो बन तो सकती हैं ना. Then part D, boys who wear skirts to school. जी, कोई बॉय ऐसा होगा जो कि स्कर्ट पहन के स्कूल जाता हो. ये भी एक एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट की. लेकिन अगर हम इसे देखें, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें स्कर्ट्स बच्चे पहनते हैं, बॉयज़ पहनते हैं. सो ये उस हिसाब से एम्प्टी सेट नहीं होगा. लेकिन वहाँ पे फिर आपको इसके साथ रीज़न दिखना पड़ेगी. ठीक है? अव्वल तो ये एम्प्टी सेट है, और अगर आप इसको कहें कि दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, तो उसके साथ आप रीज़न लिखेंगे. इन सम अफ्रीकन कंट्रीज स्कर्ट्स इज़ द वियरिंग ऑफ मेल. उसके बाद पार्ट ई, ओरेटर्स हु कैन नॉट टॉक वेल. तो क्या कोई ऐसा अच्छा ओरेटर हो सकता है, ऐसा मुकर्रर हो सकता है जो कि अच्छा ना बोल सकता हो? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. उसके बाद ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4. कोई ऐसा ऑड नंबर है जो कि 4 पे डिवाइड होता हो? मुमकिन नहीं है ना. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट.
Then part G, multiples of 3 that are divisible by 9. G, this is not an example of empty set, क्योंकि multiples of 3 सिर्फ 3 itself है जो कि 9 पर डिवाइड नहीं होता, और दूसरा 6, बस उसके बाद जो भी 3 का मल्टीपल है वो 9 पर डिवाइड होगा, लेकिन सारे नहीं, ठीक है, सारे 3 पर डिवाइड नहीं होंगे, सारे वो 3 के मल्टीपल्स जो कि 9 पर भी डिविजिबल हों, मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर डिविजिबल बाय 9, तो कुछ ऐसे नंबर्स हमें मिल जाएंगे जो कि इस शर्त पे पूरे उतरते हैं. सो दिस वे दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. देन पार्ट H, ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स. तो यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, सो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है. मतलब इस शर्त पर जो के अंदर डिस्कस की गई है कंडीशन, उस पर कोई एक भी एलिमेंट हमें मिल सकता हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा. और वो कंडीशन अगर इस तरह से हो, पोलर बियर्स लिविंग इन सहारा डेजर्ट, जो कि मुमकिन ही नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा. क्लियर? तो उसके बाद पैरेललोग्राम हैविंग 5 vertices. This is impossible to draw a parallelogram having 5 vertices. So this is empty set. Then quadrilaterals having 3 obtuse angles. ऐसी quadrilateral जिसमें 3 एंगल्स ऐसे हो जो कि obtuse हो. Is it possible? ये पार्ट J, ये भी एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट की. तो यहाँ पर जो भी एम्प्टी सेट, देखिए ना, स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट पे जाएंगे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट. तो जो एम्प्टी सेट होंगे उसके साथ आप यस लिखेंगे, और जो एम्प्टी सेट नहीं होंगे उसके साथ आप लिखेंगे नो. राइट? ऑल द क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन टू यू. इस क्वेश्चन को आपने इसी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है. यहाँ पीछे आप लिख देंगे यस या नो, इधर ही लिख देंगे आप. राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन एंड स्टेट वेदर इट इज एन एम्प्टी सेट. पार्ट A is E is the set of odd numbers that are divisible by 2. Question number 1, 7. Part A, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि इस शर्त पर, इस कंडीशन पर पूरा उतर सकता हो. तो लिखते हैं E equal to empty set, because there is no any odd number that is divisible by 2. Right? Next part is F equal to X when X is a month of the year with more than 31 days. तो हिंदू कैलेंडर में तो शायद हैं ऐसे कुछ मंथ्स जिनमें 32 डेज होते हैं, लेकिन अगर हम सोलर कैलेंडर की बात करें तो उसमें कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जिसमें 31 डेज होते हों. सो ये भी एम्प्टी सेट आप लिखेंगे. F इक्वल टू एम्प्टी सेट, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, G इज द सेट ऑफ quadrilaterals with 5 vertices each. तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसमें 5 वर्टाइसेस हों. 5 वर्टाइसेस तो हो सकते हैं सिर्फ पेंटागन में, ठीक है ना. क्वाड्रिलेटरल में तो 4 वर्टाइसेस हो सकते हैं, होंगे. 4 से ज़्यादा होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल रहेगा ही नहीं. सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. देन H, X when X is an even prime number.
x when x is an even prime number. Yes, this is very important. देखिए, अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इवन नहीं हो सकता, और इवन है तो वो प्राइम नहीं हो सकता, सिवाय 2 के। 2 वो एक ऐसा अनोखा नंबर है कि 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर एट द सेम टाइम। सो इसका आंसर होगा एक ऐसा सेट, यानी सिंगल्टन सेट, एक मेंबर पर मुश्तमिल सेट, ऐसा सेट जिसका मेंबर है सिर्फ 2, राइट? दिस वे क्वेश्चन नंबर 7 is concluded. See you in the next lesson. Till that time, Allah Hafiz.